Some men of forward motion love, but I by backward steps would move, and when this dust falls to the earth, in that state I came return. इस संसार में सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे पोएट हैं जो अपने जीवन में पीछे वापस जाना चाहते हैं। और वैसा क्यों वापस जाना चाहते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज एक पोम में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, you all are welcome again in your channel, The Literary Arena. I am Dinanath Kumar, and today I am going to discuss a very important, very meaningful and beautiful poem. And the title of the poem is The Retreat, and it has been composed by Henry Vaughan. Henry Vaughan was one of the greatest metaphysical poets of 17th century. Dear friends, Henry Vaughan was a disciple of George Herbert, and he was also a devotional poet like George Herbert. Dear friends, अब हम लोग इनके प्रेजेंट पोएम द रिट्रीट के बारे में समझेंगे कि ये पोएम क्या है, किस पर्पज से लिखा गया है, इस पोएम का उद्देश्य क्या है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले हेनरी वॉन के बारे में जानेंगे कि हेनरी वॉन का जन्म जो है इनका 17 अप्रैल 1621 को वेल्स में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 23 अप्रैल 1695 को हुआ था। 74 इयर्स एजेड वो थे, इन वेल्स में ही हुआ था। इनका एक नोटेबल वर्क है जो कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, जिसका नाम है साइलेक्स सेंटिलेंस। ये इनके लाइफ का मोस्ट इंपोर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। इनका नोटेबल वर्क्स ये हो गया, हेनरी वॉन ये हो गया। हेनरी वॉन के तस्वीर को आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही है हेनरी वॉन। Henry Vaughan was a Welsh metaphysical poet, author, translator, and physician. He was not only a poet but also an author and a translator and a physician. एक फिजिशियन भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, ऑथर और पोएट भी थे। He is best known for his poem Select Sentences, which was published in 1650. 1650 में इनका ये कलेक्शन ऑफ पोएट्री जो है पब्लिश हुआ था, विद अ सेकंड पार्ट इन 1655, और 1655 में इसका सेकंड पार्ट पब्लिश हुआ था। Vaughan began writing secular poetry. ये इन्होंने सेकुलर पोइट्री भी लिखा, बट कन्वर्टेड टू मोर रिलीजियस थीम्स लेटर ऑन हिज कैरियर। और बाद में ये रिलीजियस थीम को फॉलो करने लगे, रिलीजियस थीम पर लिखे लगे, क्योंकि ये जॉर्ज हर्बर्ट के एक डिसाइपल थे, एक शिष्य थे। ही वाज heavily influenced by the religious poet George Herbert, यहाँ लिखा भी हुआ है, and it is his religious poetry that remains critically acclaimed. Vaughan lived most of his life in Wales, which acted as another source of inspiration for his writings. He married twice and had 4 children before his death in 1695 at the age of 74. डियर फ्रेंड्स, तो ये हो गया हेनरी वॉन के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग समझेंगे कि इनका जो मास्टरपीस जो है, सबसे उत्कृष्ट कृति जो है, सुपर क्रिएशन जो है, वो है द रिट्रीट। आप इस पोम को एक बार देख लें। पहले मैं इस पोम को पढ़ूंगा, ये मेरा फेवरेट भी पोएम रहा है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन। एक बार मैं पोएम को पढ़ता हूँ। हैप्पी दोस अर्ली डेज व्हेन आई साइंड इन माय एंजल इन फैंसी, बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस अपॉइंटेड फॉर माय सेकंड रेस, or taught my soul to fancy aught but a white celestial thought, when yet I had not walked above a mile or two from my first love, and looking back at that short space, could see a glimpse of his bright face, when on some gilded cloud or flower my gazing soul would dwell an hour, and in those weaker glories espy some shadows of eternity, before I taught my tongue to wound my conscience with a sinful sound, or had the black art to dispense a several sin to every sense, but felt through all this fleshy dress bright suits of everlastingness. Oh, how I long to travel back and tread again that ancient track, that I might once more reach that plain where first I left my glorious train, from whence the enlightened spirit sees that sad city of palm trees. But ah, my soul with too much stay is drunk and staggers in the way. Some men of forward motion love, but I by backward steps would move, and when this dust falls to the earth, in that state I came return. डियर फ्रेंड्स, ये हुआ टोटल पोएम
पोएम्स के लाइंस को मैंने रिकॉल किया। ये थोड़ा सा लंबा पोएम है, बट हम लोग इसे लाइन बाय लाइन अब एक्सप्लेनेशन, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस पोएम में पोएट जो है अपने इन्फेंसी यानी अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं इन्फेंसी में बहुत ही खुश था। मैं उस समय परमेश्वर के करीब था, गॉड के करीब था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, मैं परमेश्वर से दूर होते गया, परमेश्वर की ब्लेसिंग से दूर होता गया, और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि इस धरती पर आकर मेरी आत्मा जो है वो करप्ट हो गई। मेरी आत्मा जो है वो यहाँ के मटेरियलिस्टिक वाइन को पीकर स्टैगर करने लगी, लड़खड़ाने लगी। अब मैं लाइंस को पढ़ता हूँ, फ्रेंड्स देखें इसको। हैप्पी दोज अर्ली डेज, वो दिन कितने खुशनुमा थे। व्हेन आई साइंड इन माई एंजल इन्फेंसी, जब मैं अपने एंजल इन्फेंसी के फॉर्म में था। एंजल जो होता है वो डिवाइन होता है, प्योर होता है, पायस होता है, और यहाँ साइंड का मतलब हो गया डिवाइन वर्च्यूज से लिया गया है कि मैं एक देवदूत की तरह, एक फरिश्ते की तरह उस समय चमक रहा था, क्योंकि मेरे अंदर जो थे उस समय पीस था और डिवाइन वर्च्यूज थे। साइंड इन माई एंजल इन्फेंसी, पॉजिटिव एनर्जी से मैं चमक रहा था। बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस अपॉइंटेड फॉर माई सेकेंड रेस, कि जब तक मैं इस दुनिया को समझता, इस धरती पर आने के बाद मैं इस धरती को अच्छी तरह से समझ भी नहीं पाया था, तब तक मुझे मेरे दूसरे रेस के लिए, सेकेंड रेस के लिए अपॉइंट कर दिया गया। तो यहाँ सेकेंड रेस क्या अर्थ हुआ? सेकेंड रेस कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे पोएट जो है अपने जवानी के दिनों की बात कर रहे हैं। बचपन से अचानक उनका परिवर्तन जो हुआ वो जवानी में चले जाते हैं, और वो अपने एंजल इन्फेंसी को जो है पीछे छोड़ देते हैं। और टॉट माई सोल टू फैंसी ऑट, और ये कहते हैं कि इस धरती पर मेरी आत्मा को हर प्रकार की चीजें सिखाई गई। यहाँ की जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सारी बातें मुझे सिखाई गई, लेकिन उन सभी बातों में सिर्फ यही नहीं सिखाया गया कि इसमें जो है वाइट सेलेसियल थॉट यानी कि प्योर हेवनली थॉट्स नहीं थे। सद्गुणों से भरी हुई बातें उसे नहीं सिखाई गई। पोएट कहते हैं कि मेरी आत्मा को यहीं से करप्ट किया गया। फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा में और एक बड़े व्यक्ति में क्या फर्क है। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब भी कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, कि यानी एक बच्चा जो है वो बड़े का पिता है। ऐसा क्यों? तो ये इस बेसिस पे कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो है, वो इन्फेंट जो है, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, वो प्योर है, वो पवित्र है। लेकिन जैसे ही इंसान बड़ा होते जाता है तो उसके जीवन में ऐसी ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं जो उसे उसके पतन की तरफ ले जाती हैं। यानी कि जितना उम्र में जो व्यक्ति बड़ा है वो उतना ही ज्यादा करप्ट है, उतना ही ज्यादा करप्शन वो किया है। तो पोएट कहते हैं यहाँ पे कि एक छोटा सा बच्चा को अगर हम लोग लॉलीपॉप देते हैं तो वो उस लॉलीपॉप को भी खा लेगा, और उस बच्चा को अगर हम जहर देते हैं तो वो जहर को भी खा लेगा बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि वो नहीं जानता है कि इस जहर को खाने से मैं मरूंगा और इस लॉलीपॉप को खाने से मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि वो डिस्टिंक्शन नहीं जानता है, वो भेदभाव नहीं जानता है। वो अपनी बहन को भी बहन समझता है और किसी और की भी बहन को बहन समझता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो कहता है ये मेरी अपनी बहन है और वो मेरी चाचा की बेटी है, मेरी कजन है। तो ये जो भेदभाव आता है, तो वही भेदभाव जो है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के कारण, मटेरियलिस्टिक वाइन के कारण, मटेरियलिस्टिक वाइन को पीने के कारण ये भौतिकवादी दुनिया का असर पड़ता है। तो पोएट कहते हैं कि मैं उस समय जो था प्योर था, पायस था, और मुझे इस धरती पर सारी बातें सिखाई गई, लेकिन उसमें कोई भी डिग्निटी वाली बातें नहीं सिखाई गई। When yet I had not walked above a mile or two from my first love, और मैं अपने बचपन से एक दो माइल आगे ही चला था। And looking back at that short space, और मैं वहां से पीछे मुड़कर वापस देख रहा था अपने एंजल इन्फेंसी को, अपने बचपन के दिनों को। Could see a glimpse of his bright face, his कैपिटल एच। फ्रेंड्स, कहीं भी कैपिटल एच लिखा रहे, हिज लिखा रहे कैपिटल एच, तो उसका मतलब होता है गॉड ऑलमाइटी, ये परमेश्वर के लिए क्या कहा गया है। तो पोएट बताना चाहते हैं कि मैं जब छोटा बच्चा था, तो जब मुझे सेकंड रेस के लिए अपॉइंट किया गया, तो मैं पीछे मुड़ कर देखा तो उनका चेहरा दिखाई दे रहा था चमकता हुआ। किनका चेहरा? तो ऑलमाइटी परमेश्वर का।
When on some gilded cloud or flower, my gazing soul would dwell an hour. और ये कहते हैं कि जो एक गार्डन ऑफ ये हेवन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे कि हेडन में जो क्लाउड्स और फ्लावर्स जो थे गिल्डेड मतलब सुनहरे कलर के, उन चीजों को मैं बचपन में घंटों घंटों तक निहारता था। बिहोल्ड मतलब होता है निहारना या देखना, गेज मतलब बिहोल्ड। उन चीजों को मैं घंटों घंटों एकटक होकर देखता था, फ्लावर्स को, क्लाउड्स को। माई गेजिंग सोल वुड ड्वेल एन आवर एंड इन दोज वीकर ग्लोरीज स्पाई सम शैडोज ऑफ इटर्निटी। लेकिन वो उतनी ही ये गिल्डेड जो हैं क्लाउड्स और फ्लावर्स हैं वो उतनी चमकीली नहीं थी जितना कि गॉड का ऑरा जो था, जितने इटर्निटी में था। सम शैडोज ऑफ इटर्निटी का यहाँ पर मतलब हुआ गार्डन ऑफ ईडन, यानी कि हेवन से और परमेश्वर से बताया जा रहा है, गॉड से बताया जा रहा है कि उनके अंदर जो चमक थी उस चमक के सामने ये चमक कुछ नहीं था। किसका चमक? तो ये फूलों का चमक और ये गिल्डेड क्लाउड्स का चमक। सम शैडोज ऑफ इटर्निटी बिफोर आई टॉट माई टंग टू वुंड। और इस धरती पर मेरे जुबान को सिखाया गया कि दूसरों को आहत कैसे करना है, अपने बातों से आहत कैसे करना है। आज हम लोग किसी को बुरा भला बोल देते हैं और उसके किसी व्यक्ति के दिल को चोट पहुंचा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक नवजात शिशु में नहीं होता है, एक बच्चा में, इन्फेंट में नहीं होता है, लेकिन हम लोग जैसे बड़े होते हैं तो हम लोग दूसरों को कष्ट देना सीख जाते हैं। इस धरती पर हम लोग को सिखा दिया जाता है। माई कंसस विथ अ सिनफुल साउंड। और मेरी चेतना जो थी वो सिंफुल हो गई थी, पापग्रस्त हो गई थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था वैसे वैसे मैं गलतियां करते जा रहा था, मेरे पाप बढ़ते जा रहे थे। और हैड द ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस अ सेवरल सिन टू एवरी सेंस। और मुझे वो ब्लैक आर्ट सिखाया गया। डिस्पेंस मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। वो ऐसा आर्ट था, वैसी कला थी जिससे मैं लोगों में बुराइयों को फैला सकता था, उन्हें आहत कर सकता था और उन लोगों को भी दूसरों को आहत करने के लिए सिखा सकता था। बट फेल्ट थ्रू ऑल हिज फ्लेशी ड्रेस ब्राइट सूट्स ऑफ एवरलास्टिंगनेस। फ्लेशी ड्रेस मतलब मॉर्टल बॉडी। ये मॉर्टल बॉडी है, हमारा शरीर जो क्या है वो मॉर्टल बॉडी है, क्योंकि ये मरने वाला है, खत्म होने वाला है, नश्वर है। ब्राइट सूट्स ऑफ एवरलास्टिंगनेस। लेकिन मैं इसमें महसूस कर रहा था कि एवरलास्टिंगनेस है, यानी कि परमेश्वर की शक्तियां, परमेश्वर के क्वालिटीज अभी भी मुझ में हैं। और इस समय कवि को जो है अब पश्चाताप होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है। और पोएम के दूसरे पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था फ्रेंड्स, ये स्टैंजा तो मैं नहीं कहूंगा, स्टैंजा नहीं है, दो पार्ट में लिखा गया है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ यहाँ तक और ये सेकेंड पार्ट हुआ यहाँ तक। तो सेकेंड पार्ट में पोएट कहते हैं, ओ हाउ आई लॉन्ग टू ट्रेवल बैक। लॉन्ग मतलब डिजायर। कवि जो है अब ये अपनी इच्छा को बताते हैं। ओ हाउ आई लॉन्ग टू ट्रेवल बैक एंड ट्रेड अगेन दैट एंशिएंट ट्रैक। कहते हैं ओह, अब मुझे अपने पिछले रास्ते पे मुझे बहुत दूर जाना होगा, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल चुका हूं और आगे से पीछे जाने में मुझे अब एक लंबी दूरी तय करनी होगी। एंड ट्रेड अगेन दैट एंशिएंट ट्रैक। और उस रास्ते पर, जिस रास्ते पे मैं पहले चला करता था, वहां जाने में मुझे बहुत समय लगेगा। that I might once more reach that plane where first I left my glorious train। और उस रास्ते पर पहुंचना जो है आसान नहीं है, जहां से मैं अपने फर्स्ट लव को छोड़ के सेकेंड लव के लिए चला था। फ्रॉम whence the enlightened spirit sees। जहां से जो है enlightened spirit को मेरी आत्मा देखती थी। दैट सैडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज। ये सैडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज, ये पूरे लाइन जो है ये हेवन के लिए इंडिकेट किया गया है, HEAVEN। सैडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज बट माई सोल विथ टू मच स्टे इज ड्रंक एंड स्टैगर्स इन द वे। लेकिन अब मेरी आत्मा जो है इस भौतिकवादी दुनिया में आके यहाँ के भौतिकवादी शराब को पी चुकी है, ये करप्ट हो चुकी है, पापों से ग्रस्त हो चुकी है और अब ये लड़खड़ा रही है, ये चलने में असमर्थ है सीधा होकर। और अब पोएट कहते हैं कि सम मेन ऑफ फॉरवर्ड मोशन लव, कि सारे लोग इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आई बाय बैकवर्ड स्टेप्स वुड मूव। लेकिन मैं वापस जाना चाहता हूं पीछे, लेकिन ये संभव नहीं है। कि अब कोई व्यक्ति अगर जवान है, बूढ़ा है और वो चाहे कि मैं बचपन में चला जाऊं, तो क्या संभव है? ये संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन सिर्फ एक रास्ता है। एंड व्हेन दिस डस्ट फॉल्स टू द अर्न इन दैट स्टेट आई कैम रिटर्न। कवि कहते हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने इन्फेंसी को मैं प्राप्त कर सकूं, उसके लिए मुझे मरना होगा। आई शैल हैव टू डाई एंड टेक रीबर्थ अगेन। मुझे मरना होगा और मरने के बाद मैं दूसरा जन्म लेकर आऊंगा, तो ही मैं अपने एंजल इन्फेंसी को प्राप्त कर सकता हूं, अपने उस डिग्निटी को प्राप्त कर सकता हूं
और उस परमेश्वर के करीब जा सकता हूँ जो मैं परमेश्वर के करीब था। इन दैट स्टेट आई कैम रिटर्न। अर्न का मतलब डस्ट फॉल्स टू अर्न, मरने के बाद चिता को जलाने के बाद जो राख बचता है, जिस बर्तन में रखा जाता है, उसे ही हम लोग अर्न कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस पोएम को अच्छी तरह समझे। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।